Hello, my dear students. कैसे हो आप सब? In this session, we'll be taking up questions of permutations and combinations that have appeared in CUET examination in previous years और TISNET examination और CMAT. चलिए start करते हैं session को. So as we know, in chapter of permutations and combinations, we primarily have to select number of ways when we are doing selection or when we are doing arrangement. It could be selection of elements or persons for a group. Whenever we are doing selections, we are selecting some people out of the given people or some items out of the given items. We are using NCR method, and the formula for that is n factorial divided by r factorial into n minus r factorial, that is selection. और अगर अरेंजमेंट भी करना है तो अरेंजमेंट इंक्लूड्स सिलेक्शन, इट ऑल्सो इंक्लूड्स सिलेक्शन. So if we have to arrange r items out of n items, then first we have to select those r items by the method NCR, and then we'll arrange those r items in r factorial ways. That is also written as NPR. ठीक है, ये कुत्ते बड़े भौंक रहे हैं. So NCR into r factorial, that is NPR. Okay, so selection is done by NCR. In short, n factorial or factorial in general, 5 factorial, that is 5 into 4 into 3 into 2 into 1. So n factorial in general is n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 and so on till 1. If we have to select only one item out of n items, which is NC1, so that will always be equal to n only. यानी कि या तो पहला सेलेक्ट करेंगे या सेकंड या थर्ड. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमें 4 आइटम्स गिवन है एंड इफ यू हैव टू सेलेक्ट वन आउट ऑफ दीज, तो या तो फर्स्ट वाले को करेंगे या सेकंड को या थर्ड को या फोर्थ को, तो टोटल 4 ही तरीके होंगे या n ही तरीके होंगे इन जनरल. सो NC1 विल ऑलवेज बी इक्वल टू n. सिमिलरली अगर हमें एक भी आइटम सेलेक्ट नहीं करना है n में से, तो NC0 दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1. एक ही तरीका होगा, कोई भी सेलेक्ट नहीं करेंगे. सो NC0 विल बी इक्वल टू 1 एंड NC2 selecting 2 items out of n will be n into n minus 1 divided by 2. For example, 5C2 will be 5 into 4 divided by 2, so that is 10. 6C2 will be 6 into 5 divided by 2, that is 15. And in the same process, NC3 के लिए क्या करेंगे, n फैक्टोरियल के फर्स्ट 3 टर्म्स को लिखेंगे और डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल करेंगे. तो दैट विल बी n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2. सो 4C3 विल बी इक्वल टू what? 4 into 3 into 2 divided by 3 into 2, so it will be equal to 4. 5C3 will be equal to 5 into 4 into 3 divided by 3 into 2. 3 से 3 गया, 2 से 2 बचा, 10 बचा. 6C3 will be equal to 6 into 5 into 4 divided by 3 into 2, so that is 20. And 7C3 will be equal to 7 into 6 into 5 divided by 3 into 2, so that is 35. And 8C3 is equal to 8 into 7 into 6 divided by 3 into 2, so that is 56. अब 6C3 को और 7C3 को और 8C3 को ऑब्जर्व करें तो वी कैन डायरेक्टली से कि 6C3, 7C3 और 8C3 में 6 का टर्म तो आ ही रहा है न्यूमरेटर में. सो दैट इज वाई कि 6C3 के जो फर्स्ट 3 टर्म्स है 5 into 4 विल बी इक्वल टू द रिजल्ट 20. 7C3 में 7 into 5 दैट इज 35, दैट विल बी द रिजल्ट. एंड 8C3 में 8 into 7 56 विल बी द रिजल्ट. सो इनको भी याद रखना है बिकॉज दीज आर ऑल्सो वेरी, याद रखना इन द सेंस कि प्रैक्टिस में लाना है सो दैट यू काइंड ऑफ रिमेंबर देम. वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार फ्रीक्वेंटली आते हैं. क्लियर है? सो अब क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं विद दिस मच नॉलेज. और इन जनरल अगर हमें फॉर एग्जांपल कैलकुलेट करना है 9C4, सो 9 फैक्टोरियल के फर्स्ट 4 टर्म्स लिखेंगे और डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल कर देंगे. तो दिस विल बी 9 into 8 into 7 into 6 डिवाइड बाई 4 into 3 into 2 into 1. सो दिस बिकम्स 4 into 2 से 8 कैंसिल आउट हो गया और 3 से
3 बचा, सो दिस विल बी 18 into 7 126. क्लियर है? और इन जनरल NCR, अगर इनमें से हम R चीज़ों को सेलेक्ट कर रहे हैं, सो वी आर एट द सेम टाइम रिजेक्टिंग N minus R थिंग्स. सो NCR इज ऑलवेज इक्वल टू NC N minus R. And this result is very important because, for example, we have to calculate 10C7. So instead of calculating 10C7, we can calculate 10C 10 minus 7, which is easy. So NCR is equal to N minus R. That is also an important result to remember. Okay. So now let us start the questions. Question number 1 is MA education students have to choose one pedagogy course from an option of 3 mathematics, science and a language and one thematic course from an option of 2 leadership and social justice along with the compulsory courses. Compulsory courses तो करना ही करना है. So how many different combinations of optional courses are possible? So there are compulsory courses जिनके बारे में हमें फिक्र नहीं करनी, वो तो हमेशा होंगे ही होंगे. Then there is one pedagogy course, और pedagogy course कौन कौन से हैं? Mathematics, science and language. And then there is one thematic course, leadership and social justice. So we have to select one out of these 3 pedagogy courses. Number of ways will be 3. Any one can be selected, 3C1 or in general 3. Similarly, for selecting one thematic course, number of ways will be 2. And we have to do both. कोई choice नहीं उनके बीच में. तो one pedagogy course को भी select करना है और one thematic course को भी select करना है. So answer will be 3 into 2. That is equal to 6. Option D. Clear है? ओके. सो कभी भी अगर हमें कोई 2 सिलेक्शन करने हैं एंड देयर इज एंड बिटवीन देम, सो वील मल्टीप्लाई बिकॉज दोनों काम एक साथ करने हैं हमको. एंड इफ देयर इज और बिटवीन देम, either the first one has to be selected or the second one. In that case we'll add the methods, add the number of ways. Is it clear? ठीक है. For example, कि if we have to select one vowel and one consonant from English alphabets, so one vowel को select करने के number of ways कितने होंगे? That will be 5C1, और for one consonant that will be 21C1, and we will multiply both of them. So that will be our answer, which is 105. And if the question was we have to select one vowel or one consonant, so we have to select either of them, not both. So one vowel select करने के तरीके 5C1, one consonant के 21C1, and we'll add these two. So answer will be 26. So these two things have to be remembered as well. Next question is, in how many ways can the letters of the word detail be arranged so that the vowels occupy only the odd positions? Detail word है हमारा, 6 letters है, और जिसमें कि vowels कितने हैं? E, A and I. 3 vowels are there, and vowels must occupy the odd positions. Odd position start हम counting कहाँ से करेंगे? लेफ्ट साइड से. तो 1 2 3 4 5 6, तो 1 3 एंड 5, दीज आर ऑड पोजिशंस. और वॉवेल्स हमारे यहीं पे होने हैं. 3 वॉवेल्स हैं, 3 ऑड पोजिशंस हैं, प्रॉपर है. तो वॉवेल्स को अरेंज कर देंगे ऑड पोजिशंस पे, 1 3 और 5 पे. तो अरेंजमेंट क्या हो जाएगा वॉवेल्स का? 3 फैक्टोरियल तरीके से वी कैन अरेंज देम. तीनों डिफरेंट है. मल्टीप्लाइड बाई बचे हुए कॉन्सोनेंट जो वो भी डिफरेंट है, और वो इवन पोजिशंस पे अरेंज हो जाएंगे. मल्टीप्लाइड बाई 3 फैक्टोरियल. आंसर विल बी 6 into 6, that is 36. Option 4. क्लियर है? ओके. अगर जस्ट इन केस ऐसा होता कि डिटेल में होता लेट अस से 2 वॉवेल्स, सिर्फ 3 नहीं होते, ठीक है, ओनली 2 वॉवेल्स. इफ डिटेल हैड ओनली 2 वॉवेल्स एंड 4 कॉन्सोनेंट्स, इन दैट केस, और बाकी कंडीशन क्वेश्चन की सेम रहती. सो इन दैट केस हमें पता है कि 3 पोजिशंस हैं ऑड, 1 3 and 5. देयर आर 3 पोजिशंस, 3 ऑड पोजिशंस, एंड वी हैव ओनली 2 वॉवेल्स. तो एक ऑड पोजिशन तो खाली रहने वाली है. हम 2 वॉवेल्स से सिर्फ और सिर्फ 2 ही ऑड पोजिशंस को फिलअप कर सकते हैं. इजंट इट सो? सिर्फ 2 ही ऑड पोजिशंस को फिलअप किया जा सकता है. सो इन दैट केस क्या करना होता कि हम 2 ऑड पोजिशंस को पहले सेलेक्ट करते. 3C2 तरीके से वी कुड हैव सेलेक्टेड दोज 2 ऑड पोजिशंस, देन वी वुड हैव अरेंज्ड 2 वॉवेल्स 2 फैक्टोरियल तरीके से, एंड देन वी वुड हैव अरेंज्ड रिमेनिंग पोजिशंस में कॉन्सोनेंट्स को. सो आवर आंसर वुड हैव बीन 3C2 into 2 factorial into 4 factorial. Is it clear? Okay. Next question. In how many different ways can the letters of the word transport be arranged such that vowels always come together? Total letters कितने हैं ट्रांसपोर्ट में?
2T है, 2R है, और टोटल लेटर्स है ट्रांसपोर्ट 9 लेटर्स है, 9 लेटर्स है. A and O, these are 2 vowels. ओके, और वॉवेल्स शुड ऑलवेज कम टुगेदर, यानी कि बेसिकली यहाँ पे 9 है जिसमें से कि ए और ओ को एक साथ कर देंगे बिकॉज इनको साथ में ही रखना है, ये कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे. और इसके अलावा जो बच गए सब डिफरेंट है, टी टी, आर आर, और देन एन एस पी. ठीक है, एन एस पी, हाँ यही है सारी कहानी. टोटल 8 एलिमेंट्स हैं जिनको कि अरेंज करना है बिकॉज ए और ओ साथ में ही है, साथ में ही क्लब्ड है. तो नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट आ जाएंगे 8 फैक्टोरियल. एंड सिंस ए एंड ओ आपस में तो अरेंज हो सकते हैं, साथ में रहेंगे, पर आपस में तो पहले ए आए फिर ओ आए, या पहले ओ आए फिर ए आए, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट हो जाएंगे उनके 2 फैक्टोरियल. बट वी नो कि देयर आर 2 टीज एज वेल, तो इनका जो आपस का अरेंजमेंट है उसके लिए डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि वो मल्टीपल केसेस हो जाएंगे. ये आपस में अरेंज करेंगे तो भी तो सेमी वर्ड बनाएंगे. भाई ट्रांसपोर्ट का पहले टी को आखिर में ले जाओ, आखिरी वाले को पहले में ले जाओ, तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल कर देंगे फॉर टी एंड डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल फॉर आर, बिकॉज 2 आर भी हैं. 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया. दिस बिकम्स 8 इंटू 7 फैक्टोरियल बाई 2, सो 4 इंटू 7 फैक्टोरियल, और 7 फैक्टोरियल इज 5040, तो 4 इंटू 5040 that is 20,160. So our answer will be option 2. Next question. In how many different ways can the letters of the word potency be arranged in such a way that the vowels always come together? Same चीज है. Potency में total 7 letters हैं. O, E, these are 2 vowels, तो ये साथ में रहेंगे. Then P, T, N, C, Y, all are different. Number of ways of arrangement कितने हो जाएंगे? Total 6 groups बन गए हमारे, 6 फैक्टोरियल. और ये आपस में अरेंज हो सकते हैं मल्टीप्लाइड बाई 2 फैक्टोरियल. सो दैट विल बी 720 इंटू 2 विच इज 1440. ऑप्शन डी. क्लियर? ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी 3-letter words with or without meaning can be formed out of the letters of the word logarithms if a repetition of letters is not allowed? 3-letter words हमें बनाने हैं. लॉगरिदम में लेटर्स कितने हैं? लॉग 3, 3, 4, 10 लेटर्स हैं टोटल, और सारे डिफरेंट हैं. LOGARITH, हाँ सारे डिफरेंट हैं. तो 10 लेटर्स हैं हमारे पास अवेलेबल, जिसमें से कि हमें 3-letter वर्ड्स बनाने हैं. तो नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे. 10 में से 3 सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले, तो सिलेक्शन 10 से 3, एंड देन विल अरेंज दोज 3, तो मल्टीप्लाइड बाई 3 फैक्टोरियल. 10 से 3 इंटू 3 फैक्टोरियल, सो दैट विल बी 10, 9, 8. दैट विल बी आवर आंसर बिकॉज 3 फैक्टोरियल डिवाइड होगा और मल्टीप्लाई होगा. सो आंसर विल बी 720. ऑप्शन 2. ओके, इजी क्वेश्चन. क्वेश्चंस देख रहे होगे कि जनरली बहुत डुएबल और बहुत इजी ही आते हैं पीएनसी के. सो बस ये है कि कॉशियस रहना है, गलती नहीं करनी है. सो यू विल डेफिनेटली बी सेलेक्टिंग द करेक्ट आंसर. इन हाउ मेनी वेज कैन अ ग्रुप ऑफ 5 men and 2 women be made out of a total of 7 men and 3 women? दिस इज द सेकेंड टाइप जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली आता है कि हमें सिलेक्शन करना है, यहाँ पे कमेटी बनानी है. ओके, सो इन हाउ मेनी वेज कैन अ ग्रुप ऑफ 5 men and 2 women बी सिलेक्टेड? 7 men में से 5 men लेने हैं हमको, तो नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 7C 5, और 3 women से 2 women लेनी है तो 3C 2. नाउ वी नो 7C5 कैन बी रिटन एज 7C2 और 3C2 कैन बी रिटन एज 3C1. So this becomes 7 into 6 by 2, which is 21 into 3, and answer will be 63. Option 3. Clear? Okay. बाकी ऑप्शंस तो इस तरह के देके रखे हैं कि हमें पता है कि 7 men में से सिलेक्शन कर रहे हैं, तो न्यूमरेटर में 7 आने वाला है, डिनोमिनेटर में कहीं भी 7 नहीं आएगा, तो आंसर तो 7 का मल्टीपल होगा. ठीक है, तो आंसर तो इतने ईजी थे, ऑप्शंस तो इतने ईजी थे कि कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी. बट वैसे भी करने में कितना टाइम लग रहा है इसमें. ओके. In how many ways a committee of 5 members be selected from 7 men and 5 ladies? 5 members की कमेटी बनानी है such that committee consists of 3 men and 2 ladies. So 3 men out of 7, number of ways हो जाएंगे 7C3, and 2 ladies out of 5, number of ways will be 5C2. 7C3 is 7, we know 7 into 5 35 होता है, and 5C2 is 10. 35 into 10, answer will be 350. Next one.
A company has 10 software engineers and 6 civil engineers. In how many ways can a committee of 4 engineers be formed from them such that the committee must contain exactly 1 civil engineer? Committee में exactly एक civil engineer हो और we have to form a committee of 4 engineers total. यानी कि 1 will be a civil engineer and the remaining 3 will be software engineers. So total 6 civil engineers है, number of ways of selection हो जाएंगे 6C1 and for the software engineers number of ways हो जाएंगे 10C3. So answer will be 6 into 10C3 will be 10 into 9 into 8 divided by 3 into 2. So 3 से 3 बचा, 2 से 4, 120 into 6, answer will be 720, option 4. Clear? Okay. Next question. At the end of a faculty development program, 10 faculty members shook hands with each other once. How many handshakes will there be together? तो 10 फैकल्टी मेंबर्स हैं और अगर उनको हैंडशेक करना है यानी कि हमें हर बार 2 लोग सेलेक्ट करने पड़ेंगे हैंडशेक के लिए. इज दैट इट? सो तो नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 10C2 10 into 9/2 which is 45 only. एक छोटी चीज जो ध्यान रखनी है ऐसे क्वेश्चंस में, हैंडशेक वाले क्वेश्चंस होंगे या फिर कभी गिफ्ट देने वाले हो सकते हैं या कुछ और, कि जब भी हैंडशेक होगा तो ए और बी का हैंडशेक, ए बी से हैंडशेक करे या बी ए से हैंडशेक करे, एक ही हैंडशेक है ऑब्वियसली, एक ही हैंडशेक है. इज दैट सो? बट अगर ए बी को गिफ्ट दे और फिर बी ए को गिफ्ट दे तो दीज आर डिफरेंट इवेंट्स, तो ये 2 इवेंट्स में काउंट होगा. तो ये ध्यान रखना कि हैंडशेक वाले में तो 10C2 होगा, बट अगर कोई गिफ्ट दे रहे हैं या कुछ और ऐसा क्वेश्चन है तो उस केस में हमें मल्टीप्लाई बाई 2 करना पड़ेगा या फिर 10 into 9 करेंगे. ठीक है, बिकॉज टोटल केसेस कितने बनेंगे तब हमें उस हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा. हाँ, हैंडशेक में इट विल बी NC2 ओनली, बिकॉज हैंडशेक में ए और बी का कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट. बट अदरवाइज अगर गिफ्ट दे रहे हैं तो ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट. ए बी को गिफ्ट देगा दैट इज अ डिफरेंट इवेंट और बी ए को गिफ्ट देगा दैट इज अ डिफरेंट इवेंट. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. देयर आर 6 टीचर्स, आउट ऑफ देम 2 टीच फिजिक्स, other 2 teach chemistry and the rest 2 teach mathematics. They have to stand in a row such that physics, chemistry and mathematics teachers are always in a set. अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लैंग्वेज जो है वो फंसाने वाला, मतलब कि समझ में, क्लैरिटी में आने में दिक्कत होगा कि इस बात का क्या मीनिंग है. They have to stand in a row such that physics, chemistry and mathematics teachers are always in a set. The number of ways in which they can do so. But this implies कि जो भी फिजिक्स के टीचर्स होंगे वो एक एलिमेंट की तरह बिहेव करें, केमिस्ट्री के टीचर्स एक एलिमेंट की तरह बिहेव करें यानी एक साथ हों, और मैथमेटिक्स के टीचर एक साथ हो. दे आर ऑलवेज इन अ सेट. उनका ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी कि ऐसा भी हो सकता है तब भी सेट बन जाएगा, या फिर पहले फिजिक्स वाले आए फिर मैथमेटिक्स वाले आए फिर केमिस्ट्री वाले आए तब भी बन जाएगा. तो देयर कैन बी मल्टीपल वेज, यानी वो आपस में अरेंज हो सकते हैं बट दे शुड बी टुगेदर. एक सब्जेक्ट टीचर एक साथ ही होने चाहिए. ठीक है. सो फिजिक्स के हमारे 2 टीचर्स हैं, केमिस्ट्री के 2 टीचर्स हैं और मैथमेटिक्स के 2 टीचर्स हैं. टोटल हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं या 3 अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं. तो इनका अरेंज होने के तरीके कितने होंगे? दैट विल बी 3 फैक्टोरियल. इन 3 फैक्टोरियल वेज वी कैन अरेंज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स टीचर्स. और फिर टीचर आपस में भी अरेंज हो सकते हैं. सो नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट आपस के कितने होंगे? 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. सो दिस विल बी 6 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 8 48. ऑप्शन ए will be the answer. Okay. Next question. In a group of 6 boys and 4 girls, 4 children are to be selected. In how many different ways can they be selected such that at least 1 boy should be there? कम से कम एक बॉय तो होना चाहिए. Minimum 1 boy should be there. So क्या केसेस बन सकते हैं? 4 have to be selected कि 1 boy हो, 3 girls हो, टोटल 4 है, या फिर 2 boys हो, 2 girls हो और 3 boys, 1 girl, और देयर कैन बी 4 boys. 1 boy 3 girl के नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? 6C1 इंटू 4C3 विच इज 4C1 ओनली. तो 6C1 इंटू 4C1, 6 इंटू 4 24 हो गया नंबर ऑफ वेज. 2 boys यानी कि 6C2, 2 girls इंटू 4C2. सो दिस इज 15 इंटू 6 विच इज इक्वल टू 90. 3 boys 6C3 into 4C1. So this is 20 into 4 which is 80. And lastly 4 boys, so 6C4 into none girl, so 4C0. 6C4 is nothing but 6C2 only, so this will be 15 into 1 and hence 15.
टोटल हो जाएगा 90 प्लस 80 170, 24 प्लस 15 39, सो आंसर विल बी 209 फॉर दिस क्वेश्चन। बट ये इस क्वेश्चन को करने का एक लंबा तरीका है। हमें एज सच क्या करना चाहिए, कंडीशन क्वेश्चन की क्या कहती है कि सच दैट एटलीस्ट वन बॉय शुड बी देयर, कम से कम एक बॉय होना चाहिए। तो टोटल केसेस में से अगर हम वो केसेस घटा दें जबकि एक भी बॉय नहीं होगा तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग ऑल दीज केसेस व्हाट वी कैन डू कि टोटल केसेस निकाल लें और उसमें से वो केसेस सब्ट्रैक्ट कर दें व्हेन देयर आर 0 बॉयज। सो टोटल केसेस आ जाएंगे हमारे 10 में से हमें सेलेक्ट करने हैं 4, 10C4 माइनस जब कोई भी बॉय नहीं होगा तो सारी गर्ल्स होंगी यानी कि 4C4। 10C4 will be 10 into 9 into 8 into 7 divided by 4 factorial, which is 4 into 3 into 2 into 1 minus 4C4 will be 1 only. तो 4 into 2 यानी 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया और 3 से 3 बचा, 3 into 7 21 into 10 210 minus 1 आंसर will be 209. So this is much shorter. So we'll apply the second method. जहाँ पे सेकेंड मेथड शॉर्ट होगा वहाँ पे सेकेंड मेथड अप्लाई करेंगे, अदरवाइज जहाँ पे फर्स्ट मेथड शॉर्ट होगा फर्स्ट मेथड में हो सकता है एक या दो केसेस बन रहे हो तो वहाँ पे फिर फर्स्ट मेथड से ही कैलकुलेट करेंगे। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट वन। अ बाउल कंटेन्स 8 वायलेट 6 पर्पल एंड 4 मैजेंटा बॉल्स, 3 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड आउट द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग द बॉल्स ऑफ डिफरेंट कलर। पर्पस क्या है यहाँ पे? वी हैव टू सेलेक्ट द बॉल्स ऑफ डिफरेंट कलर, और कोई कुछ भी और मेंशन नहीं है, यानी कि सारी डिफरेंट होनी चाहिए, विच इंप्लाइज कि अगर 3 बॉल्स हैं तो तीनों का कलर डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, दैट इज द कंडीशन। और अगर तीनों का कलर डिफरेंट होना है तो मतलब क्या हुआ कि एक वॉयलेट हो, एक पर्पल हो, एक मैजेंटा हो। So number of ways of selecting one violet out of 8 will be 8C1, or 8 for selecting one purple out of 6 will be 6, and for selecting one magenta out of magenta will be 4. 8 into 6 into 4 तीनों काम करने हैं, so that will be 48 into 4, that is 192. Option 1 will be the answer. Next question. In how many ways 9 friends Alok, Badal, Carol, Dorothy, Emily, Frank, Govind, Harish and Indivar be divided equally into 3 groups? अब 3 ग्रुप्स बनाने हैं हमें इन 9 फ्रेंड्स में से। अच्छा सवाल है, कैसे करेंगे इसको? ओके, सो ऐसे समझना है हमको कि 3 ग्रुप्स बनाने हैं, क्योंकि 3 लोगों के कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 3 ही पर्सन होते, लेट अस से पहले छोटा एग्जाम्पल ले लेते हैं, A, B and C, दीज वर द 3 पर्सन्स, और हमें इनके 3 ग्रुप बनाने होते। तो 3 ग्रुप अगर हम बना रहे हैं तो इस बार तो तीनों ग्रुप में एक ही एक पर्सन रहेगा, इजंट इट सो? ओनली वन पर्सन विल बी देयर। सो तरीका ये हो सकता है कि पहले वील सेलेक्ट वन ऑफ देम, लेट अस से वी सेलेक्टेड A फर्स्ट, तो ए ग्रुप बन गया जिसमें कि A है, देन वी सेलेक्टेड C सेकंड एंड देन B, सो देयर आर 3 ग्रुप्स A, C एंड B। या फिर ऐसा हो सकता है फर्स्ट वी सेलेक्टेड B, देन वी सेलेक्टेड C एंड देन वी सेलेक्टेड A, तो टोटल 3 ग्रुप्स बने। अब क्या बताओ, इन दोनों में कोई फर्क है क्या? जब भी हम ग्रुपिंग कर रहे हैं तो ऑर्डर तो इंपॉर्टेंट नहीं है, सो बोथ ऑफ दीज आर इक्वल एज सच, क्योंकि तीनों ही केसेस में हमारा एक ग्रुप A का बनेगा, एक B का बनेगा, एक C का बनेगा, इजंट इट सो? है कि नहीं? क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, सो इफेक्टिवली क्या हुआ कि हमने ग्रुप बनाने के लिए क्या किया, पहले 3 में से एक को सेलेक्ट किया 3C1, देन बचे हुए 2 में से एक को सेलेक्ट किया 2C1, और फिर तो एक ही बच गया तो 1C1। बट इन सारे केसेस में हुआ क्या कि जितना भी ग्रुप का अरेंजमेंट होगा, यानी कि ये जो 3 ग्रुप्स बनेंगे हमारे, अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हमें तो ग्रुप्स सेलेक्ट करने हैं, ग्रुप्स का सिलेक्शन होना है, बट ये अरेंज जो हो रहे हैं तो अरेंजमेंट से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 3 फैक्टोरियल तरीकों से द ग्रुप्स कैन बी अरेंज्ड, 3 ग्रुप्स कैन बी अरेंज्ड, तो उससे हमें डिवाइड करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आती है? क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? तो बेसिकली इस केस में हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड आएगा, एक ही तरीका है। एक ग्रुप में A आएगा, एक में B आएगा, एक में C आएगा। देयर कैन बी ओनली वन वे टू सेलेक्ट 3 ग्रुप्स आउट ऑफ दीज 3, इजंट इट सो? क्या ये बात क्लियर है? इस छोटे में इसलिए समझा बिकॉज अल्टीमेटली जब हम ग्रुप्स का सिलेक्शन करेंगे तो पहले तो सेलेक्ट करेंगे 3-3 का, फिर वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो अरेंजमेंट है उससे हमें डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि चाहे पहले ग्रुप में आलोक, बादल और कैरोल आए, और दूसरे में डोरोथी, एमिली, फ्रैंक आए, और थर्ड में गोविंद, हरीश एंड एंदीवर आए, या फिर आलोक, बादल, कैरोल थर्ड ग्रुप में आ जाए, डोरोथी, एमिली, फ्रैंक फर्स्ट में आ जाए, और गोविंद, हरीश, एंदीवर सेकंड में आ जाए। दोनों के लिए हमारे लिए कोई दोनों में डिफरेंस नहीं है। इज इट क्लियर? ओके, तो अब सिलेक्शन करते हैं। आई रिपीट कि A, B, C इफ दे फॉर्म द फर्स्ट ग्रुप, D, E, F इफ दे फॉर्म द सेकेंड ग्रुप, एंड G, H, I इफ दे फॉर्म द थर्ड ग्रुप। ठीक है, दिस इज फर्स्ट ग्रुप, दिस इज सेकेंड ग्रुप, दिस इज थर्ड ग्रुप, और D, E, F
from the first group, A, B, C the second group, and G, H, I the third group. Both are same. Both are same. So all such arrangements we have to be divided for. Okay, we have to divide by 3 factorial for all such arrangements. Okay, first of all we'll have to select 3 persons out of 9 for the group 1. So 9C3 will be number of ways for group 1. Then for group 2, 6 are remaining, 6C3, and then obviously जो बचे हुए 3 है वो सारे के सारे एक साथ आ जाएंगे, तो 3C3. So this will be number of ways of selection of groups. But problem ये है इसमें repetition होगा, ये same वाले, इस type वाले. So we'll have to divide by 3 factorial. So 9C3 will be 9 into 8 into 7 divided by 3 into 2. 6C3 will be 20, we already know, और 3C3 is 1 only, divided by 3 factorial करेंगे. Okay, divide by 3 factorial करेंगे तो क्या आ जाएगा? This will become 9 into 2 से यहाँ पे बचा 10. This 2 will make it 5. 3 से बचा 3 और ये 3 भी कैंसिल आउट कर देगा, तो ये 3 भी गया हमारा. आ गया 8 into 7 into 5 which is 280. Answer will be 280 in this question. Clear है? ठीक है, कोई दिक्कत? So that will be our answer. Now let us say instead of 9 friends there were 12 persons and we had to make 4 groups. Okay, so comment कि कितने number of ways से we can select the groups. 12 persons and 4 groups. Okay. Next question. 10 points are marked on a straight line and 11 points are marked on another parallel straight line. How many triangles can be constructed with vertices among the above points? 10 points है एक straight line पे, 11 है एक दूसरी straight line पे. How many triangles can be constructed? तो for constructing a triangle condition क्या होगा? जब भी कोई ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करोगे, all 3 points should not be collinear. अगर तीनों पॉइंट्स सेम लाइन पे होंगे तो ट्रायंगल थोड़ी बना पाओगे, तो शुड नॉट बी कोलिनियर. एंड इफ ऑल 3 पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर तब तो पक्का ट्रायंगल बन जाएगा. ट्रायंगल जैसा ही बने, टेढ़ा मेढ़ा, ऑब्ट्यूज बने, एक्यूट बने, बट ठीक है, आइसोसेलेस बने. ऑब्ट्यूज एक्यूट तो एंगल्स हो गए, ठीक है, बट ऑब्ट्यूज ट्रायंगल भी हो गया तुम्हारा. ओके, सो ट्रायंगल तुम्हारा कैसा ही बने, आइसोसेलेस हो, जो भी तरह का ट्रायंगल हो, बट अल्टीमेटली ट्रायंगल कैन बी फॉर्म्ड इफ द 3 पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर. बट इफ दे आर कोलिनियर only a straight line can be formed, a triangle cannot be formed. ठीक है, और हमें यहाँ पे बनाने हैं ट्रायंगल्स. तो कंडीशन क्या होना चाहिए? कोई भी 3 पॉइंट को सेलेक्ट कर लेंगे, बस वो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं होने चाहिए. बस वो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं होने चाहिए. तो 2 तरीके हैं इसको करने के. पहले ये कर सकते हैं, टोटल 21 पॉइंट्स हैं, 10 ऑन वन स्ट्रेट लाइन, 11 ऑन अनदर, टोटल 21 है. 21C3, सेलेक्ट एनी 3. बट प्रॉब्लम इसमें क्या होगा, कुछ केसेस वो आएंगे जबकि तीनों पॉइंट सेम स्ट्रेट लाइन पे होंगे, तो उनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. सो वील हैव टू सब्ट्रैक्ट दोज केसेस व्हेन ऑल द 3 पॉइंट्स आर फ्रॉम द 10 पॉइंट्स ऑन द फर्स्ट स्ट्रेट लाइन और फ्रॉम द 11 पॉइंट्स ऑन द सेकेंड स्ट्रेट लाइन. सो वील हैव टू सब्ट्रैक्ट दीज केसेस. 21C3 आ जाएगा हमारा 21 इंटू 20 इंटू 19 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2. 2 से आया 10, 3 से बचा 7, तो माइनस 10C3 is 10 into 9 into 8 by 6 which is 120 plus 11C3, 11 into 10 into 9 by 6. 165. So this comes out to be 19 into 7, 1330 minus 285. So answer will be 1030 plus 15, 1045. Option C. Clear? Okay. This is one way to look at it. Second तरीका ये हो सकता है कि since we have to make a triangle, we can select 2 points on the same straight line and 1 on a different straight line. 2 points on the same and 1 on a different straight line. So 10C2, 2 points 10 point वाले straight line पे select किए and 1 point on the other straight line into 11C1. और इट कुड बी 11C2 इंटू 10C1. और रिपीटिशन का तो कोई चांस है नहीं यहाँ पे, बिकॉज एक स्ट्रेट लाइन पे 2 सेलेक्ट कर रहे हो, एक पे 1 सेलेक्ट कर रहे हो, तो 10C2 विल बी इक्वल टू 45 इंटू 11 प्लस 11C2 विल बी 11 इंटू 10 बाई 2
which is 550 55 into 10. So first will be 450 plus 45, 495, and second will be 550. So answer will be 1045. So चाहे पहले तरीके से करो या दूसरे करो, दोनों का जो लॉजिक है वो क्लियर होना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Given below are two statements. Statement 1 is saying a committee of 4 can be made out of 5 men. Okay, statement पढ़ने से पहले क्या करना क्या है हमको? In light of the above statement, choose the correct answer. ठीक है, तो statement true है या false है, बस ये चेक करना है. First statement is saying a committee of 4 can be made out of 5 men and 3 women containing at least one woman in 65 days. कंडीशन क्या है? At least one woman should be there. तो हम क्या कर सकते हैं? टोटल केसेस में से वो केसेस हम सब्ट्रैक्ट कर दें, जबकि देयर विल बी नो वुमन, जबकि कोई भी वुमन नहीं होगी. इजंट इट सो? टोटल केसेस कितने होंगे? 5 मेन है, 3 वुमन है, टोटल 8 पर्सन्स आर देयर. वी हैव टू सेलेक्ट 4. टोटल केसेस विल बी 8C4 एंड वील सब्ट्रैक्ट दोज केसेस व्हेन देयर आर 0 वुमन. 0 वुमन है यानी कि मेंस में से सेलेक्ट करना है, यानी कि 5C4. तो 8C4 minus 5C4, 8C4 will be 8 into 7 into 6 into 5 divide by 4 into 3 into 2. 4 into 2 से 8 गया, 3 से 2 बचा, minus 5C4 will be 5C1 which is 5 only. So this is 7 into 5 into 2, 70 minus 5, 65. और वही दिया हुआ है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू. सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है नंबर ऑफ वर्ड्स विच कैन बी फाउंड यूजिंग लेटर्स ऑफ द वर्ड अरेंज सो दैट वॉवेल्स ऑलवेज ऑक्यूपाई इवन प्लेस. नंबर ऑफ लेटर्स यहां पे कितने हैं? 7 है. ओके, सो अरेंज में कितने लेटर्स हैं? 7 लेटर्स हैं, जिसमें से कि देयर आर 2A 2R और कितने वॉवेल्स हैं हमारे? 2A और एक E है. ओके, सो कैसे अरेंज कर सकते हैं? नंबर ऑफ वर्ड्स विच कैन बी फाउंड यूजिंग लेटर्स ऑफ द वर्ड अरेंज सो दैट वॉवेल्स ऑक्यूपाई ओनली इवन प्लेसेस होंगे 2 4 6. देयर आर 3 इवन प्लेसेस और 3 हमारे वॉवेल्स भी हैं. ओके, सो नंबर ऑफ वेज अरेंजमेंट कितना हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल. सिलेक्शन का कोई चक्कर ही नहीं है. डिवाइडेड बाई, क्योंकि 2A है, डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल करेंगे. और जो बचे हुए 4 कॉन्सोनेंट्स हैं उनको भी अरेंज करना है, तो नंबर ऑफ वेज अरेंजमेंट आ जाएगा 4 फैक्टोरियल. बट उनमें से 2R है, 2R, तो उसके लिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड भी करना पड़ेगा हमको. सो नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे टोटल 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, यानी कि विच इज इक्वल टू 3 into 4 factorial by 2 factorial which is equal to 12. 3 into 12 is 36. So yes, second statement is also correct. That is also true. So both statements are true. Option 1 will be the correct answer. So एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन इन्होंने दे दिए एक तरह से क्लब करके. क्लियर है? ओके, नेक्स्ट वन. In how many different ways can the letters of the word extra be arranged so that the vowels are never together? इस बार डिफरेंट क्वेश्चन है. vowels never together, साथ में नहीं आने चाहिए किसी भी हालत में. जो 5 लेटर वर्ड है हमारा E and A आर वॉवल्स और ये साथ में नहीं आने चाहिए. अगर इनको साथ में नहीं आना है तो फर्स्टली वील अरेंज द कॉन्सोनेंट्स X T R. देयर आर 3 कॉन्सोनेंट्स और नंबर ऑफ वेज अरेंजमेंट हो जाएंगे 3 फैक्टोरियल. नाउ दैट वी हैव अरेंज द कॉन्सोनेंट्स, अब वॉवल्स 2 जो है उनको फिट करना है. वॉवल या तो यहां पे आएगा फर्स्ट प्लेस पे या बिटवीन 2 कॉन्सोनेंट्स और एट द एंड पॉइंट्स. टोटल 4 पोजीशंस है जहां पे कि वी कैन फिट वॉवेल्स, बट एक वॉवेल ही एक पोजीशन पे फिट करेंगे क्योंकि दोनों को साथ में नहीं आना है. तो वी हैव टू सेलेक्ट 2 प्लेसेस आउट ऑफ 4C2 एंड देन वील अरेंज द 2 वॉवेल्स. सो आंसर विल बी 3 फैक्टोरियल इज 6. 4C2 is 6 into 2. 72. ऑप्शन C. क्लियर है? ओके, last question. In how many different ways can 3 red balls, 2 blue balls and 4 yellow balls be arranged so that the balls of the same color come together?
सेम कलर की बॉल्स को साथ में रखना है। 3 कलर्स हैं, रेड, ब्लू एंड येलो। सेम कलर की बॉल्स को साथ में रखेंगे, वो आपस में ही अरेंज होंगी, और साथ में कलर्स भी आपस में अरेंज हो सकते हैं। ये कलर्स भी आपस में अरेंज हो सकते हैं। तो 3 रेड बॉल्स कैन बी अरेंज्ड टुगेदर इन 3 फैक्टोरियल तरीके से। 2 blue balls 2 factorial, 4 yellow balls 4 factorial, and then these 3 colors can arrange between them in 3 factorial ways. So answer will be 6 into 2 into 24 into 6. So 24 into 36 into 2, 24 into 72, क्या आंसर आएगा? ठीक है, तो हमारा यूनिट डिजिट पे आ रहा है 4 into 2 8, आंसर विल बी ऑप्शन सी क्लियरली। ओके, सो दैट विल बी ऑल फॉर दिस सेशन। और अगर सेशन पसंद आया है तो डेफिनेटली लाइक जरूर करना है, और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद मी ऑन टेलीग्राम at ADITYAKT. That's all for this session. Bye bye. Take care.